Very good morning, students. I hope you all are great and revised your previous chapter. Today we are going to do our chapter 5, which is Introduction to Excel 2016. इस chapter के अंदर हम लोग पढ़ेंगे Microsoft Excel के बारे में, which is a spreadsheet software. So, without wasting any further time, let's start the chapter. The name of the chapter is Introduction to Excel 2016, and the topics we will discuss in this chapter are spreadsheet, how to start Excel, parts of MS Excel window, selecting and deselecting of cells, entering data in a cell, saving a workbook, editing cells, editing commands in Excel, inserting cells, rows and columns, deleting cells, rows and columns, adjusting row height and column width, formatting text, autofill, creating borders, and closing MS Excel. Now, it is an amazing thought that the purpose of education is to replace an empty mind with an open one. There is an activity where you need to make a timetable for your daily routine in the space provided below. तो ये जो space provided है यहाँ पे आपको अपनी daily routine के accordingly एक timetable draw करना है. Now let's start. Here is a boy, Mayank, who says, "Hi Kavya, how are you?" He says, "Good. Can you please tell me about what is spreadsheet?" Then he says, "Did you get a bill when you buy anything from a shop or a shopping mall?" He says, "Yes, but why?" He replies, "Because these type of bills are usually in a tabular form with rows and columns. Similarly, आपका जो annual report card होता है, वो rate list of books, etc. They are also in tabular form, and these tables with rows and columns are called spreadsheets." Then she says, "Thank you, Mayank. Now I understand." He says, "In this chapter, we will learn more about spreadsheet software." Now, Microsoft Excel एक software program है जो included है in the Microsoft Office suite. Now, इसको हम use करते हैं to create spreadsheets, which are documents in which data is laid out in rows and columns like a big table. So, due to its extreme versatility and power, Excel has become the most used software program in the business world since its launch in 1985. So, Excel 2016 एक version है of Excel developed by Microsoft जो run करता है on Windows platform. It is very popular electronic spreadsheet application जो use किया जाता है to perform calculations and manage data. Excel file which can contain many worksheets is called a workbook. स्प्रेडशीट क्या होता है? एक लार्ज शीट हैविंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, उसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं. यानी कि एक ऐसी शीट जो हमारे डेटा को कंटेन करती है और उसको रो और कॉलम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है. स्प्रेडशीट यूजफुल है इन मेनी फील्ड्स. दे आर यूज्ड इन बिजनेस फील्ड्स एंड आर आल्सो यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस. तो ये कंप्राइज करता है सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो फॉर्म करते हैं एक ग्रिड. Now, Dan Bracken is known as the father of electronic spreadsheet. In 1978, उन्होंने आइडिया दिया था of an interactive visible calculator. Dan Bricklin and Bob Frankston then co-invented the software VisiCalc, which is similar to MS Excel and which was the first spreadsheet application for personal computers. Now, अगर हमें एक्सेल स्टार्ट करना है तो हम क्या करेंगे? वी विल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. बहुत सारी एप्लीकेशंस की लिस्ट आती है, विल अपीयर इन द स्टार्ट मेन्यू. देन क्लिक ऑन एक्सेल एंड एक्सेल वेलकम स्क्रीन विल बी अपीयर ऑन योर स्क्रीन. नाउ क्लिक ऑन ब्लैंक वर्कबुक. वहां से आपको एक ब्लैंक वर्कबुक को चूज करना है एंड द एक्सेल 2016 विंडो विल ओपन ऑन योर मॉनिटर स्क्रीन. नाउ हमारी एक्सेल विंडो के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? वी हैव क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, रिबन, सेल्स, वर्कशीट, फॉर्मूला बार, एक्टिव सेल, कॉलम्स, रोज एंड स्टेटस बार. तो टाइटल बार क्या होता है? टाइटल बार प्रेजेंट होता है हमारे स्क्रीन के टॉप पे जो डिस्प्ले करता है डिटेल्स रिगार्डिंग करंट डॉक्यूमेंट एंड करंट प्रोग्राम. इसके पास मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन प्रेजेंट होते हैं ऑन द टाइटल बार. Now next is quick access toolbar. तो quick access toolbar present होती है on the title bar and is used to perform many tasks. ये provide करते हैं shortcuts to a few commonly used commands जैसे save, undo and redo. फिर आता है ribbon. ribbon के दो parts होते हैं, tabs and groups, और हर एक tab जो है वो contain करता है कुछ commands arranged systematically in various groups. फॉर्मूला बार जो कंटेंट होता है ऑफ द एक्टिव सेल वो अपीयर होता है इन फॉर्मूला बार एंड व्हेन द सेल कंटेन्स टेक्स्ट और अ फिक्स्ड नंबर जो कंटेंट होता है फॉर्मूला बार का वो सेम होता है एज वी वांट टू सी इन द सेल. और नेम बॉक्स लोकेटेड होता है नेक्स्ट टू द फॉर्मूला बार एंड ये डिस्प्ले करता है सेल रेफरेंस या फिर
सेल नेम ऑफ द एक्टिव सेल। शीट टैब डिस्प्ले करता है नेम्स ऑफ द वर्कशीट, एंड जो नेम होता है एक्टिव वर्कशीट का वो डिस्प्ले होता है इन बोल्ड लेटर्स। देयर इज अ फैसिलिटी अवेलेबल टू मूव वन शीट टू अनदर बाय सिंगल क्लिक एट इट्स टैब। स्टेटस बार ये लोकेट होता है बॉटम में हमारी वर्कबुक विंडो के, ये डिस्प्ले करता है स्टेटस एंड रिजल्ट्स ऑफ द कॉमन फंक्शन यूज्ड इन एक्सेल 2016। व्यू ऑप्शन, ये जो ऑप्शंस है ये हमें एक व्यू प्रोवाइड करते हैं हमारी वर्कशीट का इन डिफरेंट मोड्स, जैसे नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, पेज ब्रेक व्यू। वर्कशीट क्या होती है? एक्सेल डॉक्यूमेंट को हम वर्कबुक बोलते हैं, एंड उस वर्कबुक के अंदर जो सारी शीट्स होती है, जो पेजेस होते हैं, वो हमारी वर्कशीट्स होती है। एंड ब्लैंक वर्कशीट पार्ट होती है हमारी वर्कबुक का। जो डिफॉल्ट नेम होता है वर्कबुक का वो होता है बुक 1, बुक 2, बुक 3 एंड सो ऑन। और जो वर्कशीट नेम्स होते हैं वो होते हैं शीट 1, शीट 2, शीट 3, सो ऑन। लेट्स नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट कंसिस्ट करती है 65,536 रोज एंड 256 कॉलम्स। Workbook is a basic file in Excel software जो contain करती है 3 worksheet by default but can be added more. Now parts of a worksheet हमारे पास होते हैं rows, columns, cell and active cell. Row क्या होती है? जो नंबरिंग है, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 and so on from top to bottom, ये सारी हमारी क्या है? rows है and they are along with the left edge of the worksheet. कॉलम्स जो हमारे लेटर्स हैं ए बी सी, जो भी हमारे ये वर्टिकल वाले कॉलम्स हैं, इन्हें हम कॉलम बोलते हैं। यहाँ पे 256 कॉलम ये कंटेन करती है। सेल जो इंटरसेक्शन है रो और कॉलम का, वो ये फॉर्म करता है। ऑल दीज आर कॉल्ड सेल्स। Cell number refers to the column number and row number you are working on. For example, if you enter data in row 5 or column E, तो आपका सेल नंबर क्या हो जाएगा? E5. Collection of selected cells is called cell range. For example, select cell from A1 to C6, तो आपकी सेल रेंज होगी वो होगी A1 to C6. एक्टिव सेल होता है हमारा हाईलाइटेड सेल इन द स्प्रेडशीट, मतलब हम यहाँ से ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारा सेल कौन सा है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं एंड वेयर द डेटा इज बीइंग एंटर्ड। तो एक्टिव सेल को हम सेल पॉइंटर या करंट सेल या सिलेक्टेड सेल भी बोलते हैं। नाउ सिलेक्टिंग एंड डिससिलेक्शन ऑफ सेल्स, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो सेल को बाय यूजिंग माउस या फिर कीबोर्ड, एंड टू सिलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स यूजिंग माउस फॉलो द गिवन स्टेप्स। आपको क्लिक करना है फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज पे दैट यू वांट टू सेलेक्ट, फिर होल्ड करना है लेफ्ट माउस बटन और उसको ड्रैग करना है जब तक आपके रिक्वायर्ड सेल्स सेलेक्ट नहीं हो जाते। देन टू सेलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स यूजिंग कीबोर्ड, आप क्लिक करोगे फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज पे, फिर शिफ्ट की का यूज करोगे along with the arrow keys until the required cells are selected. To select complete row, click on the row heading, और to select complete column, click on the column heading. हमारे पास शॉर्टकट कीज होती हैं, शिफ्ट प्लस F11 टू इंसर्ट न्यू वर्कशीट, कंट्रोल प्लस G टू गो टू अ स्पेसिफिक सेल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस U टू एक्सपेंड और कोलैप्स द फॉर्मूला बार, कंट्रोल प्लस F1 टू हाइड और शो द रिबन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटरिंग डेटा इन अ सेल। तो टू एंटर डेटा इन अ सेल, सेलेक्ट करना है हमें सेल को एंड देन टाइप करना है अपने डिजायर्ड डेटा। व्हेन यू टाइप डेटा इन अ सेल, जब भी आप अपने डेटा को टाइप करते हो इन अ सेल, डेटा आल्सो अपीयर्स इन फॉर्मूला बार। वो जो डेटा बार है वो वो जो डेटा है वो हमारे फॉर्मूला बॉक्स में भी हाईलाइट होता है विद टू बटन, कैंसिल एंड एंटर बटन। जो कैंसिल बटन है हम उसको यूज करते हैं अगर हमें कोई डेटा एंट्री कैंसिल करनी है बिफोर प्रेसिंग द एंटर की, और जो एंटर बटन होता है हम उसका यूज करते हैं जब भी हमें एंट्री को एक्सेप्ट करना है बिफोर प्रेसिंग द एंटर की। जो हमारा ये वाला इंसर्ट फंक्शन बटन होता है ये हेल्प करता है टू सी फॉर्मूलाज, टू कैलकुलेट टोटल, एवरेज एटसेट्रा। नाउ एक्सेल ऑटोमेटिकली लेफ्ट अलाइन करता है टेक्स्ट को एंड राइट अलाइन करता है नंबर डेटा को इन अ सेल। हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज होती है, ऑल्ट प्लस एंटर की टू एंटर डेटा इन मल्टीपल लाइंस इन द सेम सेल, F2 की होती है टू चेंज द कंटेंट ऑफ द सेल, और F4 की होती है टू रिपीट मोस्ट ऑफ द कमांड्स और एक्शन। नेक्स्ट आता है सेविंग अ वर्कबुक। अपनी वर्कबुक को सेव कैसे करेंगे? हम फाइल टैब पे जाएंगे, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगी, वहां से वी नीड टू चूज सेव या फिर सेव एज ऑप्शन। क्लिक ऑन ब्राउज ऑप्शन, एक सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपको फाइल नेम बॉक्स में अपनी फाइल को एक नेम देना है एंड देन क्लिक ऑन सेव बटन। नेक्स्ट इज एडिटिंग सेल्स। तो एडिटिंग का मतलब होता है ओवर राइटिंग या फिर मॉडिफाइंग करना अपने सेल कंटेंट को, एंड लेट्स लर्न मोर अबाउट देम। ओवर राइटिंग का मतलब होता है कि हम अपने टेक्स्ट को ओवर राइट कर रहे हैं या फिर रीराइट कर रहे हैं। तो फॉर दैट वी हैव सर्टेन स्टेप्स टू फॉलो। सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है सेल विद द डेटा दैट यू वांट टू एडिट। देन आप टाइप करोगे न्यू डेटा इन अ सेल एंड प्रेस करोगे एंटर की को।
प्रीवियस वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो जाएगी विद द न्यू डेटा यू एंटर्ड। नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्शियल मॉडिफिकेशन। Now follow the given steps to edit the cell data by partial modification and remove minor errors of the cell content. तो आपको सेलेक्ट करना है अपने सेल को जो भी आप एडिट करना चाहते हो, देन क्लिक ऑन फॉर्मूला बॉक्स या फिर आप डबल क्लिक कर सकते हो सेल पे इटसेल्फ और प्रेस द F2 की। जो आपका सेल टेक्स्ट है वो अपीयर होगा ऑन द स्क्रीन विद अ ब्लिंकिंग कर्सर। Now enter new data or modify the contents and press enter key. You will get the newly entered data in the cell. एडिटिंग कमांड्स इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर एडिटिंग कमांड्स कौन से होते हैं? अनडू एंड रीडू कमांड। तो एक्सेल 2016 प्रोवाइड करता है फीचर ऑफ रिवर्सिंग द लास्ट एक्शन। मतलब यहाँ पे जो हमारी अनडू कमांड है उसका काम क्या होता है कि हमने जो भी लास्ट एक्शन परफॉर्म करा है उसको रिवर्स करना। और जो जब अगर हमें कुछ अनडू करना है तो हमें बस अनडू बटन पे क्लिक करना है इन द क्विक एक्सेस टूल बार। एंड इफ यू विश टू अनडू मेनी एक्शंस तो आपको क्लिक करना है डाउन एरो नेक्स्ट टू द अनडू बटन। रीडू कमांड को हम यूज कर सकते हैं टू रीडू द लास्ट एक्शन ऑफ अनडू एक्शन। रीडू कमांड वर्क करती है ओनली जब हमने कोई अनडू कमांड का यूज किया हो। रीडू बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार स्टेज इनएक्टिव। टू रीडू एन एक्शन क्लिक ऑन द रीडू बटन इन द क्विक एक्सेस टूल बार। फिर आता है हमारे पास मूविंग सेल कंटेंट। तो इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन है? कॉपी, पेस्ट एंड कट। तो कॉपी कमांड अलाउ करती है हमें टू कॉपी द सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन एंड टेम्पररीली हम उसको प्लेस कर सकते हैं और लोकेशन पे इन अ सेम वर्कशीट। पेस्ट कमांड क्या करती है कि हमें अलाउ करती है जो भी डेटा या जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट हम कॉपी या कट कर रहे हैं उसको हम दूसरे लोकेशन पे ले जाके पेस्ट कर देते हैं विद दिस कमांड। कट कमांड अलाउ करती है जब हमें कोई इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर जगह से रिमूव करके किसी और दूसरी जगह पे लेके जानी है उसके लिए। दिस इंफॉर्मेशन दैट इज कट कैन बी पेस्टेड इनटू अनदर सेल। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू मूव डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग कट पेस्ट कमांड। तो आपको सबसे पहले अपने सेल को या रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करना है, फिर कट बटन पे जाना है इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ होम टैब। इज दिस क्लिक द सेल वेयर यू वांट टू मूव द कंटेंट। क्लिक ऑन पेस्ट बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप विच इज दिस। आपका जो कंटेंट है वो मूव हो जाएगा फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। Now we also have some shortcut keys. Control plus Z to undo, Control plus Y to redo, Control plus C to copy, X to cut, and Control plus Y to cut, Control plus V to paste. Now clear cell content. आप क्लियर कर सकते हो अपने कंटेंट को ऑफ द सेल और रिमूव कर सकते हो अनडिजायर्ड कंटेंट। सबसे पहले सेलेक्ट करना है सेल दैट यू वांट टू डिलीट। फ्रॉम द होम टैब आपको क्लियर बटन पे जाना है इन द एडिटिंग ग्रुप विच इज दिस। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगी, वहां से आप क्लियर कंटेंट ऑप्शन को चूज कर सकते हो टू क्लियर द कंटेंट ऑफ द सेल। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग सेल्स, रोज एंड कॉलम्स। तो अगर हमें सेल इंसर्ट करने हैं तो क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे सेल जहां पे भी हम इंसर्ट करना चाहते हैं। फ्रॉम द होम टैब आपको इंसर्ट ऑप्शन में जाना है इन द सेल्स ग्रुप। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, वहां से इंसर्ट सेल ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इन द इंसर्ट सेट डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन पे जो आएगा, चूज द रिक्वायर्ड ऑप्शन फ्रॉम शिफ्ट सेल डाउन, राइट, अप, एंटायर रो एटसेट्रा। इनमें से आप चूज कर सकते हो। क्लिक ऑन ओके बटन। आपका जो सेल है वो इंसर्ट हो जाएगा अबव द सिलेक्टेड सेल एंड अदर सेल्स आर शिफ्टेड डाउन। तो एज पर योर चॉइस आपके सेल्स ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगे। नाउ अगर रो और कॉलम इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे रो और कॉलम वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू रो, देन गो टू होम टैब, क्लिक ऑन इंसर्ट बटन इन द सेल्स ग्रुप। ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगी, वहां से आप क्या कर सकते हो? इंसर्ट शीट रोज को या फिर इंसर्ट शीट कॉलम ऑप्शन को चूज कर सकते हो टू इंसर्ट कॉलम। दिस इज योर एक्टिविटी जहां पे आपको क्या करना है? एक वर्कशीट क्रिएट करनी है और टाइप करनी है डिटेल्स एज शोन बिलो, जहां पे आपके पास सीरियल नंबर है, नेम्स है, एड्रेस है और कॉन्टेक्ट नंबर है। फिर आपको यहाँ पे 2 मोर डिटेल्स ऐड करनी है और सेव करना है इस टेबल को विद द नेम एम्प्लॉयज डिटेल। नाउ टू इंसर्ट अ कॉलम आप सेलेक्ट कर सकते हो कॉलम को एंड क्लिक कर सकते हो इंसर्ट शीट कॉलम्स को ऑप्शन को फ्रॉम द इंसर्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू। डिलीट करना है सेल, रो या कॉलम तो क्या करेंगे? सेल डिलीट करने के लिए हम सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर होम टैब पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे डिलीट बटन पे इन द सेल्स ग्रुप। देन एक ड्रॉप डाउन अपीयर होगा लिस्ट, वहां से आप डिलीट सेल को चूज करोगे फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। We have some shortcut keys. Control plus F9 to minimize a workbook window, Control plus F10 to maximize or restore the selected workbook. डिलीट करना है अगर रो और कॉलम को तो क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे रो और कॉलम विच वी वांट टू डिलीट, देन होम टैब पे जाएंगे,
क्लिक करेंगे डिलीट बटन को। इन द सेल्स ग्रुप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगी, वहां से क्लिक करेंगे डिलीट शीट रोज पे टू डिलीट रोज, या फिर हम क्लिक करेंगे डिलीट शीट कॉलम्स पे टू डिलीट द कॉलम्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडजस्टिंग रो हाइट एंड कॉलम विड्थ। अगर हमें अपनी रो की हाइट चेंज करनी है या कॉलम की विड्थ चेंज करनी है तो क्या करेंगे, द विड्थ एंड हाइट ऑफ एवरी रो एंड कॉलम आर सेम बाय डिफॉल्ट, बट एक्सेल अलाउ करता है हमें कि हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर रो हाइट एडजस्ट करनी है तो सबसे पहले रो को चूज करना है ऑफ अ सेल, देन फ्रॉम द होम टैब आप जाओगे फॉर्मेट बटन पे इन द सेल्स ग्रुप विच इज दिस, सेल साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो जाएगी, वहां से रो हाइट को चूज करना है, रो हाइट डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ पे एक स्पेसिफाइड वैल्यू देनी है अपनी रो हाइट की, एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन, आपकी हाइट जो है वो चेंज हो जाएगी। फिर आता है कॉलम विड्थ एडजस्ट करने के लिए, तो कॉलम को या कॉलम सेल को सेलेक्ट करना है, फिर होम टैब में जाना है, अगेन फॉर्मेट ग्रुप में इन द सेल्स ग्रुप, अब की बार हम कॉलम विड्थ को चूज करेंगे, कॉलम विड्थ डायलॉग बॉक्स आएगा, वहां पे कॉलम विड्थ की वैल्यू डालनी है इन द बॉक्स, एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन, द विड्थ ऑफ द कॉलम विल बी चेंज्ड। नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। तो हम चेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, नंबर्स को इन अ मोर अट्रैक्टिव एंड रीडेबल फॉर्म यूजिंग कमांड्स लाइक फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर, फॉन्ट इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ होम टैब। लेट्स स्टार्ट। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए हम क्या करेंगे, सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, फ्रॉम द होम टैब हम सेलेक्ट करेंगे रिक्वायर्ड कमांड को टू डिजायर्ड चेंजेस इन द फॉन्ट ग्रुप। नाउ नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है ऑटोफिल का। तो ऑटोफिल फीचर का हम यूज करते हैं जब भी हमें क्विकली एंटर करना है कोई प्री डिफाइंड सीरीज ऑफ डेटा, जैसे कोई भी नंबर या लिस्ट, फॉर एग्जांपल 11 12 13 14 या फिर जनवरी फरवरी मार्च, तो जो भी हमारी सीरीज होती है जो फिक्स्ड होती है, अगर हमें इस तरीके का डेटा एंटर कराना है तो हम ऑटोफिल का यूज करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट टू वैल्यूज ऑफ डेटा डालनी है इनटू एडजेसेंट सेल्स एंड सेलेक्ट करना है दोनों सेल्स। फिर प्लस साइन आ जाएगा जिसे हम बोलते हैं फिल हैंडल ऑन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल। नाउ आपको अपने फिल हैंडल पे क्लिक करना है और उसको ड्रैग करना है टू एनक्लोज द डिजायर्ड एरिया एंड रिलीज करना है अपना माउस बटन। जैसे ये था तो हमने इसको ड्रैग किया यहाँ तक और इस तरीके से नंबरिंग पूरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आप ये देख सकते हो कि जो सिलेक्टेड एरिया है वो सीरीज ऑफ नंबर से फिल्ड हो गया है। बाय यूजिंग दीज स्टेप्स आप क्रिएट कर सकते हो बोथ इवन ऑड नंबर्स, नेम ऑफ द मंथ्स, डेज ऑफ द वीक एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग बॉर्डर्स। तो हम बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं अपने सेल या फिर सेल रेंज के अराउंड इन अ वर्कशीट बाय फॉलोइंग सर्टेन स्टेप्स। तो आपको सबसे पहले अपने सेल या फिर रेंज ऑफ सेल्स पे क्लिक करना है, फिर होम टैब में से आप क्लिक करोगे बॉर्डर बटन को इन द फॉन्ट ग्रुप विच इज दिस, एक बॉर्डर ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगी विद मेनी बॉर्डर्स, वहां से अब आप चूज कर सकते हो कोई भी बॉर्डर स्टाइल विच यू वांट टू अप्लाई फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, और जो बॉर्डर है वो अप्लाई हो जाएगा टू द सिलेक्टेड सेल या फिर रेंज ऑफ सेल्स। फिर आता है क्लोजिंग एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल को हम क्लोज कैसे करेंगे, आफ्टर कंप्लीटिंग आवर वर्क हमें उसको सेव करना है एंड देन वी विल क्लोज आवर एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर। सो क्लोज करने के लिए हम क्लिक करेंगे क्लोज बटन पे जो टॉप राइट कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है इन द एमएस एक्सेल एप्लीकेशन। लेट्स रिवाइज द चैप्टर। एमएस एक्सेल एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंक्लूडेड है इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। एमएस एक्सेल फाइल which can contain many worksheets is called a workbook. MS Excel contain करता है बहुत सारे formulas, functions that are simple and make it easier to work with a large amount of data. Content of a active cell appear होते हैं in the formula bar and autofill feature जो है MS Excel के अंदर वो quickly क्या करता है, enter करता है हमारे predefined series of data को such as numbers and text. Status bar display करता है status and result of the common functions used in MS Excel. Redo button on the quick access toolbar stays inactive. Let's do exercise of the chapter. First is tick the correct option. Which of the following is located at the top of Excel window? Title bar. Sheet tab displays the dash of worksheets. Stays. If there is a minor error in the content of a cell, it can be corrected by partial modification and overwriting also. So both A and B. What is an Excel file called? Workbook. Control plus X and Control plus V combination is used to paste. Next is fill in the blanks. An Excel file which can contain many worksheets is called a workbook. Dash is known as the father of electronic spreadsheet.
Jen Bricklin. Dash displays details regarding current document and current program is title bar. Name box is located dash to the formula bar left. Worksheet consists of dash rows. So it is 2, it is 55,500. Let's do true false. Tabular form of data with rows and columns is called a spreadsheet. True. Enter button is used to begin the task in MS Excel. True. Sunday, Monday, Saturday is an example of numeric data series. False. An active cell is highlighted cell in spreadsheet. True. So students, this was your complete chapter about Excel 2016. I hope it is clear to you. Do revise your chapter once again. Also perform the activities and learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.